Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, I hope that you are all in high spirits with the grace of Almighty Allah. And today we are back with a new lecture, and the topic is speech and article writing. So before moving to the topic, let me introduce you with article and speech, what is the main difference between two and what is the similarity. Okay, so let's begin. When we talk about an article, it is a text used for written communication in periodicals such as newspapers, magazines or journals. So what does it mean? It means that an article is a text, okay? So it is always used in the form of text. Now what is the purpose of an article? Its purpose is communication. Okay, we use article to communicate. Now where is this article written? It is written in periodicals. Now what do you mean by periodical? So the root word of periodical is period. Okay, are you getting me? So it denotes time. It means that periodical, when we talk about periodicals are those writings, collection of writings which appear frequently, which appear daily, weekly, monthly or yearly, okay, such as newspapers, such as magazines or journals. So when we write a text for communication in newspapers, magazines or journals, so it is known as article. Okay, so you may find in newspaper there are always some articles written by some people, written by some writers, and there is some special message for the reader. Okay, and when we talk about speech, what is speech? It is also a text. Are you getting me? It is also a text, and its aim is also communication. But what is the difference? Speech is spoken communication, so this is the main important thing. But article is written communication. Remember it, article is written communication, but speech is spoken communication. And one thing more important is here, that speech is not written for periodicals, but it is always delivered. Speech is given or delivered on annual days, any functions, special functions, meetings or rallies. Are you getting me? Speech is always spoken. So I think now you have understood the difference between two. Now the similarity is that, now before delivering a speech, we always prepare a speech. Now this is, now there may be question in your mind, then why are both in text form? Okay, the reason is that a speech is not given haphazardly or randomly, but before delivering the speech it is always prepared. Okay, so it means that a speech should be well prepared, well maintained, then it is to be delivered before the audience. Okay, and the difference is that article is mainly written. Okay, it cannot be delivered in front of audience, but it has to be written in a periodical. Okay, this is the difference. And speech is always spoken, and the purpose of both article and speech is communication. Now the question is how to write an article and how to write a speech. Now let's move to the formats of article and speech. When we talk about speech writing, the format of speech writing, you will always begin a speech with greeting or salutation. For example, dear friends. Okay, then you will leave a space here, one line, then you will begin your speech. For example,
there may be a speech on corruption in public life. Are you getting me? You need not mention the title of the speech. You will start by greeting dear friends. Okay, then you will introduce your topic. Are you getting me? For example, the greed of money leads to the loss of moral values, and this greed gives rise to corruption. Are you getting me? It means that in the beginning sentence, you will start from here. In the very beginning sentence, you will give the audience of your, you will give the idea of your topic. Are you getting me? ने पहले ही सेंटेंस से पता चलना चाहे कि आपका टॉपिक क्या होगा, तो पहले ही सेंटेंस में आप इंक्लूड करेंगे टॉपिक जो भी है. आर यू गेटिंग मी? तो इंट्रोडक्शन जो सेंटेंस होगा, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने एग्जांपल दी, तो उसमें आपका टॉपिक आना चाहिए खुद, मगर टॉपिक लिखना नहीं है. देन यू विल गो ऑन. तो बेटा आप जो स्पीच है, यू कैन राइट इट इन पैराग्राफ्स. आप सिंगल पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है. आप 2 और 3 पैराग्राफ्स भी लिख सकते हैं. ठीक है, बस एक चीज़ करना है. तो पहले आप इंट्रोड्यूस मतलब करेंगे अपना टॉपिक, फिर आगे जाएंगे, मतलब टू द पॉइंट लिखना है ये. ओके, आपको डाइवर्जेंस नहीं देनी है, कोई एग्जाम्पल्स नहीं देनी है, बिल्कुल पैराग्राफ की तरह. जैसे एक पैराग्राफ होता है, जैसे पैराग्राफ में आपको पता ही है कि हमेशा आइडिया सेम होना चाहिए. ठीक है, एक ही आइडिया पे, अगर मोबाइल फ़ोन पे लिखना है, करप्शन पे लिखना है, डॉरी पे लिखना है. आर यू गेटिंग मी? स्पीच, मैं स्पीच की बात कर रहा हूँ, तो आप खाली टॉपिक का जिक्र करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा. आर यू गेटिंग मी? तो कोई डाइवर्जेंस नहीं लेने हैं, बस टू द पॉइंट लिखना है, फिर कंक्लूड करना है, यानी एक एडवाइस करनी है. जैसे करप्शन है, फॉर एग्जांपल हम ऐसे करेंगे, एडवाइस करेंगे. इट इज़ द serious demand of the time that corruption should be rooted from the soil of the world. It should be eradicated completely so that humanity can regain the morality it has lost. So we should never be corrupt and let others corrupt. For example, मैंने एग्जाम्पल दिया, आप अपने वर्ड्स में कर सकते हैं. आर गेटिंग मी? तो बिगनिंग भी साउंड होनी चाहिए इसमें, पहले टॉपिक पता चल, मतलब हमें ये समझ आना चाहिए टॉपिक क्या है. तो एंडिंग में एडवाइस करेंगे और जो बॉडी रहेगी बीच में. ठीक है बेटा? तो बस मतलब अगर फॉर एग्जांपल 20 के लाइन्स हैं, तो पहला सेंटेंस क्या होगा? टॉपिक के रिगार्डिंग. फिर आप आगे जाएंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे, टॉपिक थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ये करप्शन कैसे होता है, क्यों होता है, इसकी फॉर्म्स क्या है, शॉर्ट. हाँ, फिर कंक्लूड करेंगे, लास्ट 1, 2 या 3 सेंटेंस लिखेंगे, एडवाइस करेंगे. बस जब आपका टॉपिक जब आपका स्पीच फिनिश होगा, तो फिर आप नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्पीच, इम्पोर्टेंट है, ड्राफ्टेड बाय. और गेटिंग मी? जैसे यहाँ पे लिखा मैंने लास्ट में, स्पीच ड्राफ्टेड बाय. फिर अपना नाम, जैसे मैं अपना नाम लिखूँगा, मगर अगर एग्ज़ाम में आएगा यू आर शाकिर, फॉर एग्जांपल यू आर शाकिर of class 10th, there is a speech competition on your school on corruption at social level. तो बेटा आप एंड में अपना नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि जो असाइन आपको किया गया है, जैसे यू आर शाकिर बताया गया, तो बॉय भी शाकिर लिखेगा, गर्ल भी शाकिर लिखेगा. या फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे आएगा ऐसा, यू आर आयशा स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, तो बॉयज़ भी आयशा ही लिखेंगे वहाँ पे, क्योंकि आपको जो टाइटल असाइन किया जाएगा वही लिखना है, खुद का नहीं लिखना है, वरना उसमें मार्क्स कट जाएंगे. ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस देन? तो आर्टिकल में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा, बट बिफोर मूविंग टू आर्टिकल मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ जो स्पीच ड्राफ्टेड बाय है बेटा, यहाँ पे आप यू कैन आल्सो राइट इन प्लेस ऑफ ड्राफ्टेड, यू कैन रिप्लेस इट विद डिलीवर्ड. ओके, स्पीच ड्राफ्टेड बाय और डिलीवर्ड बाय, जो आपकी मर्जी है, आप स्पीच ड्राफ्टेड बाय लिखेंगे या डिलीवर्ड बाय लिखेंगे, आपकी मर्जी है. आर यू गेटिंग मी? स्पीच ड्राफ्टेड बाय, इट मीन्स दैट ये लेफ्ट साइड में आना चाहिए. ओके, ना मैं आपको दिखाऊंगा आर्टिकल के. बेटा आर्टिकल में क्या करना है? आर्टिकल में आपको ज़रूरी टॉपिक देना है. जैसे याद रखिए बेटा, स्पीच में टॉपिक नहीं देना है, बल्कि आर्टिकल में देना है. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा स्कैर्सिटी
ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। मान लीजिए बेटा आपको एक आर्टिकल लिखना है जो अखबार में छपेगा, क्या, स्कैरसिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो आप क्या करेंगे बेटा, आप बिल्कुल टॉपिक देंगे जैसे मैंने लिखा, और ये टॉपिक जो है, तो इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होंगे वो आप हमेशा कैपिटलाइज करेंगे, जैसे स्कैरसिटी है, ड्रिंकिंग है और वाटर है। ये इंपॉर्टेंट है ना बेटा 3 वर्ड्स, तो हमेशा ये यू विल ऑलवेज कैपिटलाइज दिस 3 लेटर्स, ओके, आई मीन बिगिनिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड्स। देन यू विल बिगिन लाइक स्पीच। कोई बस जैसा स्पीच में हमने किया, पहले इंट्रोड्यूस किया टॉपिक के रिगार्डिंग, यहाँ पे भी आप टॉपिक के रिगार्डिंग कुछ बताएंगे, मेन पॉइंट्स, ठीक है। फिर कोहेरेंस में लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे, फिर लास्ट में ऐसे ही एडवाइस करेंगे, बस एक ही फ़र्क है। तो यहाँ पे लास्ट में लिखना है शाबाश, स्पीच मत लिखेंगे, नहीं, आर्टिकल आप क्या लिखेंगे, शाबाश, आर्टिकल डिलीवर्ड बाय लिखेंगे, नहीं, क्योंकि आर्टिकल को डिलीवर नहीं बल्कि आर्टिकल को राइट किया जाता है। तो हमेशा लिखेंगे आर्टिकल में आर्टिकल रिटर्न, लास्ट में बाय। तो अकॉर्डिंगली तो यहाँ पे फिर हम एक हाइफन छोड़ते हैं बाय के बाद। उसी तरह स्पीच में भी लास्ट में हाइफन छोड़ते हैं। आर्टिकल रिटर्न बाय, अगर वहाँ पे मतलब नाम नहीं दिया हुआ है, ओके, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे क्वेश्चन होगा योर स्कूल इज़ गोइंग टू, सॉरी आई एम नॉट अबाउट दैट, मैं स्पीच की बात कर रहा हूँ। अगर आर्टिकल का हम जिक्र करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यू आर ए कैपेबल राइटर, ओके, और आप राइट करते हो आर्टिकल्स, आपका ये हैबिट है, आपको मैसेज देनी है आप ऑडियंस को, मगर थ्रू द फॉर्म ऑफ राइटिंग, तो न्यूज़पेपर में या किसी जर्नल में या किसी मैगज़ीन में। तो आप क्या करेंगे बेटा, हमेशा जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल के एंड पे अपना नाम देना होता है। क्यों, ताकि रीडर को पता चले कि ये राइटर कौन है, ठीक है, ये किसने राइट किया है। और आजकल की जो आर्टिकल्स होते हैं आप देख सकते हैं, उनमें ईमेल भी हम देख सकते हैं लास्ट में। तो अगर हम बात करेंगे मॉडर्न ट्रेंड जो है, वहाँ पे हम लास्ट में, जैसे यहाँ पे लिखा है ना हमने, आर्टिकल रिटन बाय, ओके, यू कैन राइट योर नेम, ओके, योर नेम विल बी हियर। तो यहाँ पे ईमेल भी आप लिख सकते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे हम ईमेल नहीं लिखते हैं, बस नाम लिखते हैं, ठीक है, ताकि ये पता चले हु इज़ द राइटर ऑफ द आर्टिकल, ओके। सो द पर्पज़ ऑफ बोथ टू राइटिंग्स, वेदर इट इज़ स्पीच राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग, इसका पर्पज़ मेन है कम्युनिकेशन, अपनी बात दूसरों तक पहुँचाना, ओके ना। हाउ विल बी द क्वेश्चन एग्जामिनेशन इन योर एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल नाउ, अगर ऐसे होगा बेटर क्वेश्चन, नाउ इट इज़ the scarcity of drinking water is evident in every country. Now the potable water or drinking water, its percentage is decreasing day by day. Write an article for the newspaper in 150 words. याद रखना है, आपको याद रखना है बेटा, 150 वर्ड्स तकरीबन होने चाहिए, ज़्यादा नहीं लिखना है, हाँ, तो ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, 150 वर्ड्स लिखना है, ठीक है। इट मीन्स तकरीबन ये 1 पेज बनता है, तो 1 पेज से ज़्यादा आप कोशिश करेंगे, 1 पेज से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, याद रखिए। और आप एक फुल पेज लेंगे एग्ज़ाम में, तो हाफ पेज पे आर्टिकल या स्पीच नहीं लेना, बल्कि पूरा पेज लेना है, फुल पेज लेना है, एक ही पेज पे आना चाहिए। बट डोंट वरी, अगर दूसरे पेज भी आ जाए, इट इज़ नॉट ए मैटर, बट योर वर्ड्स, जब आप वर्ड्स काउंट करेंगे तो आसपास होने चाहिए 150 के, ठीक है, आर गेटिंग मी। Now this is how we write an article and speech. Now inshallah I hope that you have understood the topic clearly. I will see you in the next lecture. Till then, take care and fi amanullah.